السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں وجیہہ بطول اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے رخ کریں گے کھیل کے میدان کی جانب۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ راولپنڈی میں جاری ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلیا کی مضبوط بالنگ لائن کے خلاف پاکستانی اوپنرز اسد شفیق اور امام الحق کی جانب سے پر اعتماد آغاز کیا گیا۔ پاکستانی بلے باز وکٹ کے چاروں طرف شاندار سٹروکس بھی کھیل رہے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ راولپنڈی میں جاری ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلیا کی مضبوط بالنگ لائن کے خلاف پاکستانی اوپنرز اسد شفیق اور امام الحق کی جانب سے پر اعتماد آغاز کیا گیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے 66 برس بیت چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک ان دونوں کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچوں کی تعداد بھی 66 ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا آج اہم دن۔ دونوں ممالک کے درمیان مجموعی طور پر 22 ٹیسٹ سیریز کھیلی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک سیریز 5 میچوں پر مشتمل تھی، جبکہ 16 سیریز 3 اور 5 سیریز 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل تھی۔ 13 میں آسٹریلیا جبکہ 6 میں پاکستان فاتح رہا۔ 3 سیریز ڈرا رہی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ کھیلا گیا۔ پاکستان نے 1 جیتا اور بقیہ 2 ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئے۔ دونوں ممالک کو اب تک ایک دوسرے کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے 66 برس گزر چکے۔ اب تک ان دونوں کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچز کی تعداد بھی 66 ہی ہے۔ ان میں سے 20 ٹیسٹ پاکستان کی سرزمین پر، 47 آسٹریلیا میں اور 9 ٹیسٹ نیوٹرل مقامات پر کھیلے گئے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج سرزمین پاکستان میں 24 سال کے بعد آسٹریلیا اور پاکستان کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 1998 میں آسٹریلین ٹیم پاکستان آئی تھی۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 سال کے اندر پوری طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال ہو گئی ہے۔ مزید کہا کہ الحمدللہ آسٹریلیا کے خلاف تاریخی ٹیسٹ میچ دیکھنے وزیر اطلاعات فواد چودھری، سینیٹر فیصل جاوید اور گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پہنچے ہیں۔ اپوزیشن انفٹ ہے، میچ نہیں کھیل سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپوزیشن کو فری میں میچ دکھانے کی آفر کر دی۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لانگ اور شارٹ مارچ چھوڑے، میچ دیکھنا ہے۔ اپوزیشن والوں کو فری ٹکٹ بھی دیں گے اور چائے بھی پلائیں گے۔ اپوزیشن کو کہوں گا کہ ایک ہم فری آپ کو باکس دے دیتے ہیں، آپ آئیے 4-5 دن میچ دیکھیں آرام سے، اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی اسٹریٹجی وغیرہ بنائیں۔ بندے وغیرہ تو آپ سے پورے ہو نہیں رہے، اور ایک ایسی جس طرح سے گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ ادھر ادھر بھاگتے آپ کر رہے ہیں، تو آپ آئیں، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹھ کے میچ بھی دیکھتے ہیں، آپ کو چائے بھی پلائیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی استثناء کے باوجود احتجاج دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی استثناء کے باوجود انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش تھی کہ یہ ریاست مدینہ کے انصاف کی طرف جایا جائے۔ ریاست مدینہ کے انصاف کی طرف جایا جائے، کوشش ہم کرتے رہیں گے جس طرح سے بھی آہستہ آہستہ یا تیز اس طرف رخ کریں۔ تو آج ایک موقع تھا اس بات کا کہ مجھے یہ پتہ چلا، وکیل صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ عدالت نے اپنا فیصلہ لکھ لیا ہے اس مقدمے کے اندر، جس کے اندر میرے خلاف یہ بات تھی کہ میں نے ہتھیار سپلائی کیے تھے 2016 کے اندر کہیں۔ تو میں نے آج مناسب سمجھا کہ میں یہاں آؤں، تو میں نے جج صاحب کے سامنے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی اصول قانون کے اعتبار سے کچھ وضاحتیں جو میں نے خود سمجھ کر اور پڑھ کر اپنی زندگی کو کے حوالے سے وہاں رکھنا چاہتا تھا، تو میں نے رکھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے پی بی اے کی درخواست کو دیگر درخواستوں کے ساتھ یکجا کر دیا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا۔ پی بی اے کے وکیل نے کہا ہے کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس آرٹیکل 910 اور 910 سے متصادم ہے۔ عدالت نے پی بی اے کی درخواست کو دیگر درخواستوں کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے کیس کی سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی۔ لانگ مارچ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی مارچ کا رخ فیض آباد سے اسلام آباد کی ڈی چوک کی جانب موڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور خط لکھ کر انتظامیہ سے ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت بھی مانگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ خط چیف کمشنر اسلام آباد کو لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ 8 مارچ کو ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का मुल्तान में पड़ाव है। जियाले पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद काफिला खानेवाल और साहिवाल के लिए रवाना होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का पड़ाव इस वक्त मुल्तान में है और आज जुमा की वजह से ये जो लॉन्ग मार्च है मुल्तान से ताख़ीर का शिकार है और 2 बजे यहाँ से रवाना होगा, जो कि लाहौर मोड़ खानेवाल से होता हुआ चीचा वतनी और रात को साहिवाल क़याम करेगा। आज सुबह सवेरे यहाँ पर नाश्ते में जियालों को, कारकुनों को नाश्ते में चने और इसके साथ साथ यहाँ पर नान दिए गए हैं। रोटी का यहाँ पर एहतमाम था और उनके लिए यहाँ पर चाय का एहतमाम था, उनके लिए यहाँ पर हलवे का भी एहतमाम किया गया था। अगर यहाँ बात यहाँ पर कारकुनों की तो यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है और वो पार्टी जो है ना वो तन पर रक्स भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, झूमर भी डाल रहे हैं और चहल पहल भी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में एक क्राउड यहाँ पर मौजूद है टेंट सिटी में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर अपने कायद के साथ रवाना होंगे। जी, खानेवाल बाईपास पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुकामी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद इस्तकबालिया कैंप में पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं सईद भट्टी से। जी सईद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में तो खानेवाल में भी इस्तकबाली कैंप जो है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, नारेबाजी भी की जा रही है और साउंड सिस्टम के ऊपर पार्टी जो तराने हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान विंग के सूबाई सदर पीर सैफुर रहमान खग्गा शाह साहब। तुमसे जानते हैं सर, बताइएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब लाहौर मोड़ खानेवाल पहुँच रहे हैं, उस हवाले से हम बहुत मुतहरिक हैं और भरपूर अपने शिरकत कर रहे हैं और उनका जो इस्तकबाल है वो फकीद और मिसाल इस्तकबाल होगा। और ये तमाम लोग दही इलाकों से, शहर से और टोलियों की शक्ल में यहाँ अपना इस्तकबाली कैंप में पहुँच रहे हैं और हम इधर उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनके साथ शिरकत करके इस्लामाबाद तक जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हमारे जो वर्कर कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों की सूरत में भी यहाँ पर इस्तकबाली कैंप में शमूलियत करने के लिए पहुँच रहे हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपने कैद का वालियाना इस्तकबाल भी करेंगे और उनके साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना भी होंगे और इस हुकूमत को घर भेजने में पीपल्स पार्टी के साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे। जी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला आज बदीन की तहसील तलहार पहुंचेगा। तलहार में जलसेगाह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाह महमूद कुरैशी और अली ज़ैदी कारकुनान से खिताब भी करेंगे। जलसे के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी कर लिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जलसा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफिन पर इल्जाम लगा दिया। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदीन के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहचान गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद ये भी कहा कि लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके हैं। सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। सिंध के बाकी लोगों को भी बदीन के लोगों की पैरवी करनी चाहिए। इस अजाब में आज सिंध मुब्तला है। इंसाफ यहाँ नहीं, तालीम यहाँ नहीं, सेहत कार्ड देना चाहते हैं बदीन को, इजाज़त नहीं। कल मैं हैरान हुआ सुन के बदीन का मुस्तकबिल का क्या होगा और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई या उनके हाथ रंगे हुए हैं, यही हो सकता है। और तीसरी बात तो मुझे दिखाई नहीं देती, ये कैफियत है। तो बदीन ने तो कल वाज़ेह पैगाम दे दिया और इशारा दे दिया कि सिंध की हवा अब किस सिमत चल रही है। और अब एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार सहाफी मोहसिन बेग की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मोहसिन बेग को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। मुनासिब जवाब न देने पर FIA अफसरान पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया है। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार सहाफी मोहसिन बेग की जमानत मंजूर कर ली। आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। यूक्रेन के शहर के जोहरी प्लांट में रूस की शेलिंग। जोहरी प्लांट की इमारत में आग भड़क उठी। मेयर ने जोहरी प्लांट में आग लगने की तस्दीक भी कर दी है। रूस की जबरदस्त शेलिंग से यूक्रेनी शहर उनर बुदार में कायम जौहरी प्लांट की इमारत में आग से जौहरी प्लांट में धमाकों का खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि जौहरी प्लांट में धमाका हुआ तो चेर्नोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। रूस फौरी तौर पर सीज फायर करे और फायर फाइटर्स को सिक्योरिटी जोन कायम करने दे। इनर बुदार के मेयर ने भी जौहरी प्लांट की इमारत में आग लगने की तस्दीक की है और बताया है कि रूसी टैंक इनर बुदार शहर में दाखिल हो गए हैं और रूसी हमले में हलाकतें भी हुई हैं। यूक्रेन
यूक्रेन के शहर चर्निहिव पर रूसी हमले में एक इमारत तबाह हुई है, जिसके मलबे से 33 लाशें मिली हैं। यूक्रेन की बंदरगाह पर रूसी हमले में 2 कार्गो जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेनी शहर खार्किव के अलावा मारियोपोल का भी मुहासरा कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 लाख अफराद नकल बगानी कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पोलैंड में पनाह के तालिब हैं। रूस और अमेरिका के दरमियान हंगामी हालात से निपटने के लिए हॉटलाइन कायम कर दी गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन और रूसी वजारत दिफा के दरमियान हॉटलाइन कायम की गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हॉटलाइन कायम करने का मकसद कशीदगी में इजाफे, फौजी तसादुम को रोकना है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है और 2 तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली अहद ने यूक्रेन के मामले पर भी गुफ्तगू की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यूक्रेन के मामले को सियासी तौर पर हल किया जाए। मामले पर फरीकैन के दरमियान सारसी का किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि तेल की आलमी मंदी में इस्तेहकाम की ख्वाहिश है। कहा कि ओपेक प्लस मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ बातचीत पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ मसावी सलूक और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात करे। इसी तरह यूक्रेन और रूस जंग से निकल सकते हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक से फौजी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि अगर ऐसा ना किया गया रूस बकिया यूरोप तक पेश कदमी करेगा। यहाँ आपको अपडेट करें। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस कराची की मुकामी अदालत में गिरफ्तार मुलजिम अशरफ की शनाख्त परेड करा ली गई है। मुकदमे के 3 ऐनी शाहिदीन ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने शनाख्त परेड में मुलजिम के हमरा 10 डी मुलजिमान को भी पेश किया है। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सैकड़ों वारदातों का एतराफ़ किया है। मजीद जानते इस हवाले से नज़ीर मेमन से। नज़ीर, आगाह कीजिएगा। सिटी कोर्ट में आज जो है सीनियर सहाफी अतहर मतीन कत्ल केस की समाअत हुई, जबकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में जो है गिरफ्तार मुलजिम अशरफ की जो है शनाख्त पेश की गई और मुकदमे के जो 3 ऐनी शाहिदीन ने मुलजिम को जो है वो शनाख्त कर लिया है। पुलिस ने शनाख्त पेड में जो है मुलजिम के हमरा 10 डमी मुलजिमान को जो है वो पेश किया गया, जबकि वाकई के जो 3 ऐनी शाहिदीन ने मुलजिम को जो है डमी मुलजिमान के दरमियान जो है वो शनाख्त कर लिया है और पुलिस ने गवाहों के मैजिस्ट्रेट के रूबरू जो है बयान की दरख्वास्त जो अदालत ने निपटा दी है और अदालत ने कहा है कि शनाख्त परेड हो जाने के बाद जो 164 के बयान की दरख्वास्त जो है गैर मुसर हो गई है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम अशरफ जो है वो सीनियर सहाफी अतहर मतीन के कत्ल में जो है वो मुलविस है और मुलजिम का साथी जो है वो अनवर जो है वो कंबर शताब को पुलिस मुकाबले में मारा चुका है, जबकि मुलजिम के दौरान तफ्तीश जो है वो सैकड़ों वारदातों का एतराफ़ किया है। उस सिलसिले में मुलजिम ने सैकड़ों वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया। मैं अपडेट कर रहे थे नज़ीर मेमन, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में गोटों की जमीन पर बुलंद इमारतें बनाना अब नहीं चलेगा। सिंध हाई कोर्ट ने भी कह दिया शांति नगर कच्ची आबादी है, ग्राउंड प्लस 6 इमारत कैसे बन गई, इमारत को फौरी गिराया जाए। 12 अप्रैल तक SBCA रिपोर्ट पेश करे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ खावर हुसैन से। जी खावर। जी, सिंध हाई कोर्ट ने आज बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि शाह लतीफ़ सेंटर जो मेरे अक़ब में वाक़ है शांति नगर में, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। किस तरह से ये 6 मंजिला इमारत कच्ची आबादी में कायम हो गई, इस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया और उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं। कच्ची आबादियों में ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त है, वहाँ पर 6 मंजिला और 8 मंजिला इमारतें बन रही हैं, जिससे आए दिन जो इमारतें गिरती हैं उनमें जानी नुकसान होता है। आप लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर जो अदालत को डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा कि कच्ची आबादी में हमारा इख्तियार नहीं है कार्रवाई करने का, ये कच्ची आबादी का काम है। तो जिस अदालत ने उस पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से ज़्यादा करप्ट कच्ची आबादी का महकमा है, जहाँ पर रिश्वतखोरी के एवज़ बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की इजाज़त दे दी जाती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला कच्ची आबादी पर डालता है, जबकि कच्ची आबादी का अमला जो है वो सिरे से गायब है और ना ही उनके पास कोई अफरादी क़ुव्वत है कि वो इस तरह की तामीरात को रोक सकें। जी।
पेशावर के असम्बली चौक में एडहॉक डॉक्टर्स का मुस्तकिली के लिए धरना जारी है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से 800 एडहॉक डॉक्टर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कोविड-19 के दौरान एडहॉक डॉक्टर्स ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अगर मुस्तकिल ना किया गया तो वजीर आला हाउस के सामने धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। मजीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त धरने में मुजाहिरीन के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर के असम्बली चौक में पिछले 3-4 दिनों से एडहॉक डॉक्टर अपने मुतालिबा के हक में सरापा एहतजाज है और धरना दिए बैठे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त एडहॉक डॉक्टरों के चेयरमैन डॉक्टर उस्मान मौजूद हैं, उनसे बात करते। मैं इस गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हमें रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि हमने कोविड में कुर्बानियाँ दी, इसमें हमारे बहुत दोस्त शहीद हो चुके हैं। हमारा एक ही एजेंडा है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। एडहॉक डॉक्टरों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, एडहॉक डॉक्टर 800 के 800 डॉक्टर को रेगुलराइज किया जाए। अगर मुतालबात नहीं माने गए, आज हमारा चौथा दिन है कि हमारा यहाँ धरना हो रहा है, इसके बाद हम इंशाल्लाह रोड पे आएंगे, फिर ये हमसे गिला नहीं करेंगे कि आप लोग डॉक्टर पे क्यों आए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एडहॉक डॉक्टर जो है वो अपने मुस्तकिल होने का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि कोविड के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। और उन मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो CM हाउस के सामने जो है वो धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़े कमी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा में कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबे में कोरोना वायरस फैलने की शरह 1.39% रिपोर्ट की गई है। महकमे सेहत बलूचिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें कोयटा से कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 2 केस गवादर और 2 केस तुर्बा से रिपोर्ट हुए हैं। कोयटा में मौसम सरमा तब्दील होने लगा, मगर शहर की मार्केटों में अंडे की फी दर्जन कीमत में कमी नहीं आ सकी। कोयटा में फी दर्जन अंडा 140 से 160 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद फैजान से। जी फैजान। जी बिल्कुल, वादी कोयटा में इन दिनों मौसम सरमा अपने अख्ताम की जानिब रवाना है। इस टाइम जो कोयटा की मार्केट है वहाँ पर अंडों की जो कीमत है वो उनमें जो है वाज़े कमी जो है दिखने में नहीं आ रही है। इस वक्त कोयटा शहर में 2 किस्म के अंडे जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। कोयटा वाले अंडे जो है उनकी फ़ी दर्जन कीमत 160 रुपये, जबकि जो पंजाब वाले अंडे हैं उनकी कीमत 140 रुपये फ़ी दर्जन जो है यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त भी एक अंडे फ़रोश जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कोयटा के अंडे ताज़ा होते हैं, अभी जैसे सुबह के फॉर्म से निकलते तो इस टाइम आ जाते, ताज़ा बिक जाते, और पंजाब के वो खामखा 2 दिन लग जाते उसको आने में, फिर स्टॉक की माल होती है तो इसलिए सस्ता है बस रुपये। जी, आपने सुना कि इनका कहना था कि अंडे के जो कीमत है वो इस वजह से वो फ़र्क है क्योंकि कोयटा के जो अंडे हैं उनकी जो कीमत है 20 रुपये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो ताज़ा होते हैं। शहरियों का यही कहना है कि जिस तरह अंडों की कीमतें हैं तो वो आम आदमी के लिए अंडों का जो क़ुव्वत ख़रीद है वो उससे बाहर होते जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से और जो दिल्ली पोल्ट्री फार्म जो एसोसिएशन उनसे कहा है कि अंडों की जो कीमतें हैं उसमें कमी कीजिए ताकि जो अंडे हैं वो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में हो सकें। जी, पाक सऊदी बर्री अफवाज के माबैन मुश्तरका मश्क अलसमसाम हश्तों में ख़त्म पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज मुश्तरका मश्क कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पब्बी में मुनक्कद की गई। कमांडर मंगला को लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर और सऊदी अरब के मेजर जनरल अब्दुल्ला इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक सऊदी मुश्तरका फौजी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहीं। पाक सऊदिया मश्क 2 हफ्ते पर मुहित 2 तरफा फौजी मशकों के सिलसिले का हिस्सा थी। मुश्तरका मश्क इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मरकूज थी। तकरीब में पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ने भी शिरकत की। कराची के इलाके लियाकताबाद में गुज़िश्ता रात नौजवान ने खुदकुशी की या फिर उसको तीसरे माले से फेंका गया, ऐनी शाहिद ने असल अहवाल बता दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं लियाकताबाद C1 के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता रात नबील नामी लड़के ने मुबैना तौर पर जो है वो खुदकुशी का वाक़या सामने आया था। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि मेरे अकब में जो ये इमारत है इसके तीसरे फ्लोर से जो है वो उसने छलांग मारी है और वो ज़मीन पर जो है वो आके गिरा है। इब्तदाई तौर पर ये बात सामने आई थी कि ये खुदकुशी का वाक़या है, लेकिन जब हमने इलाका मकीन से बात करने की कोशिश की तो इनका ये कहना है कि ये खुदकुशी का वाक़या नहीं बल्कि इसको धक्का दिया गया है तीसरी मंजिल से। बताइएगा क्या वाक़या है और किस तरीके से तमाम तरह वाक़या पेश है? भाई ये असल में पुलिस वालों का मसला था, पुलिस ले गए, लड़की का मसला था, इससे शादी वादी इसने निकाह कर लिया था किसी लड़की से, तो इसको उठा के ले गए थे, थाने में बंद करा, फिर वहाँ से छूट गया। यहाँ पुलिस वाले ऊपर आए सिविल वर्दी के अंदर, कहने लगे हमें 50,000 दो, तो उस पर इनकी आतमपाई हुई, उसके ज़रिए वो गिरा है, आतमपाई के ज़रिए उसको गिराया गया।
اور 8:30 पौने 9 बजे का वाकया रात ये, और ये एक ने नहीं सब ने देखा। यहाँ पे पुलिस वाले भागे यहाँ से उतर के, उनके पीछे लोग भागे तो मगर वो भाग चुके थे। बिल्कुल, पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि लड़के ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की है, लेकिन इलाका मकीन और ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जो ये लड़का है नबील, इसने तीसरी मंजिल से भी जो है वो पुलिस और इनके दरमियान जो है वो कुछ तल्ख़ कलामी हुई, जिसके बाद नबील को धक्का दिया गया है और नबील उसके बाद जो है वो ज़मीन पर आ गिरा, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई है। जी। मॉडल टाउन लाहौर के बीकन हाउस में जूनियर कैंपस में स्प्रिंग फेस्टिवल सजाया गया। स्प्रिंग फेस्टिवल में बच्चों और वालिदैन ने शिरकत की है। जूनियर कैंपस बीकन हाउस में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। फेस्टिवल में फेस पेंटिंग से खूबसूरत नक्श बनाए गए। नित नए डिजाइन के खिलौने तवज्जो का मरकज रहे। लॉलीपॉप रिंग टॉस में बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। जंपिंग पैड पर खूब उछल कूद भी की। बच्चों का मन भी बहला रहा। प्रिंसिपल सौद मलिक का कहना था कि 2 साल बाद स्कूल में स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। अपनी धीमी आवाज़ और खूबसूरत सुरों से शायकीन मौसीकी के दिल मोह लेने वाले गुलकार सलीम रज़ा का आज 90वां यौम पैदाइश है। उनके गीत आज भी लोगों में मकबूल हैं। अपनी लाजवाब अदाकारी से पाकिस्तानी फिल्म सनतकारी को बुलंदी पर ले जाने वाली मारूफ अदाकारा नैयर सुल्ताना का आज 85वां यौम पैदाइश है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।